Okay. So am I audible? Chalo, great. Let's start. So today we're going to start a new chapter. This chapter won't take much time, and it will be finished within 2 lectures. Majority of the portion will be covered in today's lecture itself. Topic is linear equations. We will see the linear equations in 1 variable, in 2 variable, in 3 variable. Okay, so we'll see that. So in 1 variable, in 2 variables, okay, and in 3 variables. Or in any number of variables that you may come across, right? Standard form in 1 variable would be something like this that you might have already come across. For example, ax plus b is equals to 0. Correct? Can be easily solved. How will you solve this such equation? You will keep the unknown quantity, right? You will keep the unknown quantity to the left, right? And transport or bring rest to the right. This is how you solve, right? So what would be x here? X is unknown. It would be minus b by a. Very easy. What about this? Ax plus by plus c is equals to 0. Correct? This is the standard form for a linear equation in 2 variable. How to solve? इसको कैसे solve करेंगे? हम can we copy the whatever we done in the first? क्या इसको copy कर सकते हैं हम? What we did here? क्या किया हमने यहाँ पे? Here there are 2 unknowns now. The list of unknown has increased. Here we have only 1 unknown. Here we have 2 unknowns. This is first and this is second. Fine. Let's say you are not given a second equation. You are not given a second equation. Then still you are trying to find the. So can we copy what we did in? Can we imitate what we did in the first step? क्या हम imitate कर सकते हैं? Can we copy? जो यहाँ पे किया हुआ यहाँ पे कर सकते हैं. कर लो. What can I do? I can express x in terms of y, or I can express y in terms of x. चलेगा ना? I can express x in terms of y, or I can express y in terms of x. For example, let me express x in terms of y. देखो जरा. Now I'll keep x here and transfer rest of the terms. So it would be what? Y equal to minus by minus c divided by a. Fine. I can express y. I can express y in terms of x. What it would be? It would be y equals to minus c minus ax divided by b. Is this thing clear? ये चीज समझ में आई? That I can express one variable in terms of other. अच्छा, अभी ध्यान से बताओ. How many of you are aware of real number line?
सभी बच्चे रियल नंबर लाइन से अवेयर हैं? ऐसा कोई बच्चा है जिसको पता है कि नहीं सर रियल नंबर लाइन क्या होती है? एक रियल नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसपे सारे रियल नंबर आते हैं. A real number line is a line in which all real numbers lie. करेक्ट. तो आपका सॉल्यूशन अभी बहुत इजी हो गया गाइस. देखो ये रियल नंबर लाइन है. सपोज करो ये x की है, ये x की रियल नंबर लाइन है. तो आप इसमें से कोई भी पॉइंट चूज करो. You choose any point here and substitute here. You'll get corresponding y. Yes or no? सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 चूज किया. I substituted 1 here. Will I be able to get the y? मेरे को y मिल जाएगा क्या? सिमिलरली सपोज करो ये y की लाइन है और मैंने सपोज करो y से कोई रैंडम नंबर चूज किया, सपोज करो 0.5, और मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया. सो विल आई बी एबल टू गेट x? मिल जाएगा. सो कैन आई फाउंड द सॉल्यूशन? x और y के सॉल्यूशन मेरे को मिल जाएंगे. श्योर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 2x minus 5y is equals to 10. Fine. Let us express x. x कितना हो जाएगा? It would be 10 plus 5y upon 2. अभी y रियल नंबर में से आप कोई भी रैंडम चूज कर लो. चूज एनी रैंडम. सपोज करो मैंने y इक्वल टू 1 चूज किया. सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 1 हियर. You get x what? 15 by 2. So x 15 by 2 and y 1 are the solution of this equation. ये चीज समझ में आती है? Did you understood this? मैं इस इक्वेशन में if I substitute x equal to 15 by 2, y equal to 1, LHS RHS के इक्वल हो जाएगा. So this will be called as a solution of the equation. ठीक है? हाँ. So there would be infinite solutions corresponding to every y, corresponding to every y, fine, or corresponding to every x. You'll get a corresponding x or y vice versa. So the number of solution would be infinite. Correct? Number of solutions कितने हो जाएंगे? Let me write with a different color. Number of solutions would be infinite. ठीक है? Number of solutions, they would be infinite. ठीक है? ओके. 3 इक्वेशन का फॉर जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? इसका जनरल फॉर्म तो और इजी है 3 वेरिएबल्स का. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस: ax plus vy plus cz plus d equals to 0. ठीक है? अगेन इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? यदि एक का निकालना है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2. वही सेम कर सकते हो. यू कैन एक्सप्रेस x as something, you can express y as something, you can express z as something. और बाकी दो की वैल्यू पता है? बाकी दो की वैल्यू पता है तो आप पता कर सकते हो. यदि पता नहीं है, इफ यू डू नॉट नो y and z, then you cannot find the values. It is as simple as that. इतना इसमें और कुछ सोचने का है ही नहीं. यदि आपको वैल्यू पता नहीं है, है ना, इफ यू डू नॉट नो द वैल्यूज, तो आप पता नहीं कर पाओगे. ठीक है? दीज आर 3 अननोन्स. हियर यू हैव 3 unknowns. Here you have 2 unknowns, 2 variables or 3 variables. Understood? Quite easy. बोलो.
सर उसमें अगर हमको सिर्फ y का वैल्यू पता है तो z का वैल्यू हम y के टर्म्स में डाल के z की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं ना। किसके वैल्यू पता है? आपको सिर्फ एक वेरिएबल पता है तो आपको दो रिलेशन मिल जाएंगे, और क्या, एक्स और वाई को जेड के टर्म्स में। कंप्लीट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। बोलो। हेलो सर। हाँ, सर आपने जो सेकंड टू वेरिएबल्स वाला दिखाया है उसमें फिर बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं ना। लिखा तो है इनफाइनाइट आंसर्स, ऊपर क्या लिखा है मैंने येलो से। ओके सर। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ वी विल लर्न various methods to solve the, we're interested in this, है ना, the whole chapter is focusing more on this कि किस किस तरीके से टू वेरिएबल्स को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस लर्न दैट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दी टू। तो सपोज करो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तीनों मेथड लिख दूंगा, रुको, आई विल राइट इट टुगेदर, ऑल थ्री मेथड्स। ठीक है, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन बाय सब्स्टिट्यूशन। Second, fine. Second method by equating the coefficients, elimination basically. Okay. And third one is cross multiplication. These are the three methods to solve टू इक्वेशंस। ध्यान रखना, ये वन के लिए नहीं है बेटा, वन के लिए तो इनफाइनाइट आंसर है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है ना, दिस इज फॉर टू। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्टैंडर्ड इक्वेशन ये दे रखे हैं, a1x प्लस v1y प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। a2x प्लस b2y, इसको c1 ले लो, प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अभी x और y की ऐसी वैल्यू बताओ जो इसको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें ना, सेटिस्फाइज साइमल्टेनियसली, उनको क्या बोलेंगे? दे विल बी कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। इट कैन बी डन इन थ्री वेज, all of you are already aware of that, correct na? This can be done in three ways: cross multiplication, elimination and substitution. Let us take one by one. इसको देखते हैं, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? यू एक्सप्रेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से दिस इज द एग्जांपल, x प्लस 4y is equals to 14, fine, and 7x minus 3y is equals to 5. These two are the equation. Let's say this is equation number 1, let's say this is equation number 2. So what you do, you take equation number 1 and find out x in terms of y. Fine. So what would be x in terms of y? X would be 14 minus 4y. Nice, substitute because it is substitution. Fine, substitute this in equation 2. Substitute in equation 2. So when you'll do it, you get what? यहां ये x की जगह आपको ये रखना है, तो 7 को मैंने एज इट इज रखा, 7 एज इट इज, x को यहां रखूंगा तो क्या आएगा? इट वुड बी 14 माइनस 4y वुड बी इक्वल्स टू 5।
ठीक है, इट वुड बी 98 minus 28y equals to 5. ठीक है, तो एक मिनट, 3y भी रह गया ना, आई मिस दिस 3y ऑल्सो ना, तो यहाँ पे लेट मी इरेज दिस. So it is ये वाला -3y equals to 5. ठीक है, -3y equals to 5. अभी कीप दिस एट इज इट, उसको साइड लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 31y equals to 93. So you will get y as what, 3. Y equal to 3 up, you can substitute in any equation. You can substitute in 1 or substitute in 2. फाइन, और इसमें भी डाल सकते हो, तो वहां से आपको x मिल जाएगा. You will get it what, x as 14 minus 12, that is 1. So it is one of the easiest method. हाँ सॉरी, 2 सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन इज वेरी इजी. व्हाट यू डू नाउ, यू मेक द कोफिशिएंट इक्वल्स, x और y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो. लेट्स से दिस इक्वेशन ओनली. फाइन, 14y is equals to 14, 7x minus 3y is equals to 5. So what you do, you choose कि आपको कौन से इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, है ना, कौन सा एलिमिनेट करना है. यू हैव टू फर्स्ट चूज. लेट्स से यू वांट टू एलिमिनेट y, आपको y एलिमिनेट करना है, दैट्स व्हाई एलिमिनेशन है. तो y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन विद दिस, क्या आएगा, 3, and multiply this entire equation with this 4. Rewrite the equations, correct now. You have to rewrite the equation so that you don't make mistakes. तो ये क्या हो जाएगा, it would be 3x plus 12y is equals to 14 3 is 42. यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो it would be 28x minus 12 by 20. करेक्ट. नाउ इनको ऐड करो, है ना, ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड्स, है ना, क्योंकि एलिमिनेट किस में हो रहा है, एडिशन में एलिमिनेट हो रहा है. यदि सब्ट्रैक्शन में एलिमिनेट हो रहा होता तो आई वुड हैव सब्ट्रैक्टेड. कंफ्यूज मत होना कि सर कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है. जिस मेथड से एलिमिनेट हो वो करना है. इस केस में इफ यू ऐड they will be cancel out. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, this would be 31x would be equals to 62. So you'll get x equals to 2. ठीक है, अभी x को या सब्स्टिट्यूट कर लो, यदि सब्स्टिट्यूट नहीं करना तो नेक्स्ट यू कैन एलिमिनेट x नाउ. Okay, यदि आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना, इफ यू डोंट वांट टू सब्स्टिट्यूट, तो अभी आपने y को एलिमिनेट किया है, नाउ यू कैन एलिमिनेट x. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लास्ट ना, द लास्ट मेथड. इसमें क्या होगा, द इक्वेशन वुड बी गिवन इन समथिंग दिस फॉर्म, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, जो ऊपर लिखा है मैंने ऑलरेडी. ठीक है, a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. तो इसको ऐसे लिख लो गाइस, याद करने का तरीका बता रहा हूं. यू राइट ऑल द कोएफिशिएंट फर्स्ट स्टार्टिंग विद y, v1 v2 c1 c2 a1 a2 and again v1 v2. ठीक है, the answer is something like this, x upon b1 c2 minus b2 c1. ठीक है, y
is A2 C1 minus A1 C2 equals to 1 upon A1 B2 minus A2 B1। ठीक है, अभी देखने में आपको टफ लग रहा होगा बट इट क्वाइट इजी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं। देखो अभी समझाता हूं कैसे। ये देखो, आपको सपोज करो x फाइंड करना है, आपको x फाइंड करना है ना बेटा, तो आप x के कोफिशिएंट को मत लो, डू नॉट टेक द कोफिशिएंट ऑफ x, बाकी कोफिशिएंट को लो। सो मैंने यहाँ पे x रखा और बाकी की कोफिशिएंट यहाँ लिख दिए। मेरे को x फाइंड करना है ना, मैंने x यहाँ रखा, बाकी की कोफिशिएंट ऐसे लिख दिए b1 b2 c1 c2। ठीक है, अभी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो b1 c2 माइनस b2 c1। आपको y फाइंड करना है तो y के कोफिशिएंट मत लो, ठीक है ना, ये लो, x के कोफिशिएंट लो और c के लो, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म के लिए ये ऑर्डर ध्यान रखना गाइस, मिस्टेक मत करना। ठीक है, अंडरस्टूड। ये ड्राइव कर सकते हो, कैन यू ड्राइव दीज, ये ड्राइव हो जाएंगे, these can be derived, है ना, these can be derived using this elimination method, these formula can be derived using elimination method। ठीक है, so this is for two variables only बेटा, चैप्टर का नाम ही है, there could be n number of variables, conditions would be given। बोलो सर, आप ये सब्स्टिट्यूशन के लास्ट में जो किया एक बार समझा सकते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन की लास्ट मेथड, हाँ नहीं, लास्ट में आज रेड से लिखा हुआ है, मतलब वहाँ। हाँ, आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। अच्छा, तो वहाँ पे y इक्वल टू 93 आया है। y is equal to 93 divided by 31। अच्छा ठीक है सर, ओके। और सर आप एक बार ये यहाँ पे जो है एलिमिनेशन मेथड में 3x + 12y, उसको हमेशा प्लस ही करना होता है क्या नेक्स्ट वाले के साथ, कि माइनस? नहीं, इट डिपेंड्स कि आपको किस में एलिमिनेशन मिल रहा है। यदि मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो अब ये कैंसिल हो रहा है, हाँ, तो मैं ऐड कर दिया। यदि सब्ट्रैक्शन पे कैंसिल हो रहा, नाम ही एलिमिनेशन है ना, फोकस दिस एलिमिनेशन, हाँ यस सर। तो जब जिस केस में एलिमिनेट होगा आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, और सर ये जो लास्ट वाला है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये एलिमिनेशन मेथड डिराइव होता है? हाँ, एलिमिनेशन मेथड से ड्राइव हो जाएगा। हाँ, और सर एक बार ये सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली वाला वापस समझा सकते हैं? सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, देखो ना, x = 2 और y = 3, इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं। x + 4y, इसमें x = 2 डालो 2, y = 3 डालो, 4 × 3 12, कितना आ गया 14। तो ये पहला इक्वेशन आ गया, 14 = 14। सेकंड वाला देखो, 7 × 2 - 3 × 3, कितना आएगा ये 14 - 9, कितना आएगा 5, 5 = 5। तो दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया। हाँ थैंक यू सर, समझ गई, थैंक यू। बोलो सर, जो थर्ड मेथड है उसका आप एग्जांपल देके समझा सकते हैं, जैसे x + 4y का दिया था वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का। तो सॉल्व करो, करो ना, दिख नहीं रहा क्या, कंपेयर करो जल्दी से। सॉल्यूशन x = 2 और y = 3 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बोलो। पता करो व्हाट इज a1 b1 c1 c2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो।
सर थर्ड मेथड की जरूरत क्या है? अगर हम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड से डिराइव कर रहे हैं तो वो इसकी जरूरत नहीं है जरूरत कभी बेटा, पड़ेगी? देख कोई जरूरत नहीं है, जिसको जो कन्वीनियंट है वो करे। ओके इनफैक्ट इस मेजोरिटी आप देखोगे यू विल बी यूजिंग दिस मेथड, है ना। 90% और 80% ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग दिस मेथड ओनली, एलिमिनेशन। यस But sometimes this method also becomes useful when there are a lot of variables involved. ओके ना तो only one equation is sufficient. But we are learning कि नहीं ऐसा हो सकता है. Question can be solved in multiple ways. ओके सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमेशा इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। Equal to बोल सकते हैं इक्वल टू 0 ही होना चाहिए हमेशा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा लिखा है, आप C1 उस साइड लेके जाओगे तो नोटेशन चेंज हो जाएगा। ओके सर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा तभी कंपेयर करना। ओके सर, बोलो सर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड वापस समझ सकते हैं क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड बेटा सामने दिख रहा है ना आपको। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये वेरिएबल फाइंड करने हैं, है ना। A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे फाइंड करोगे? बाय कंपैरिजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर लो इससे। A1 कितना हो जाएगा 1, B1 कितना हो जाएगा 4, C1 कितना हो जाएगा माइनस 14। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को कंपेयर कर दो, यहाँ वैल्यू डालो और सॉल्व कर लो, दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। बोलो सर ए और बी के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो A1 B2 के साथ आना चाहिए ना? किसमें? 1 के नीचे सर। ड्राइव कर लो बेटा, ड्राइव। ये सर 1 क्या के आना नीचे चाहिए क्या नहीं आना चाहिए सब डेरिवेशन डिसाइड कर देगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है ना सर हाँ ए और बी के बीच में, तो A1 और B2 आएंगे ना, B1 कैसे? x के लिए, y के लिए, किसके लिए? सर 1 के लिए आपने इधर एकदम राइट पे। 1 के हाँ लिए, तो 1 के लिए क्या आएगा? ये वाला, है ना। तो ये दोनों ले लो, ये सर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद बोल रहा हूँ A1 B2 होना चाहिए ना 1 के नीचे। तो B2 ही है ना, ये B2 ही है। सर ये 1 ही दिख रहा है सर, इसलिए। B2 है। ओके सर, थैंक यू। बोलो सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने जो लिया है ऐसे B1 B2, सर पहले A आना चाहिए ना, मुझे समझ में नहीं आया ठीक से। इसमें हाँ सर। बेटा ये याद करने का तरीका पता है, x काउंट करना है ना आपको, तो x हाँ। को ये रखा, इसके कोफिशिएंट को अभी डू नॉट टेक द कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि आपको x फाइंड करना है। तो इनके कोफिशिएंट ले लो। इनके कोफिशिएंट क्या है? B1 C1 B2 C2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सबट्रैक्ट कर दो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ठीक है। सिमिलरली y के फाइंड करना है तो y के कोफिशिएंट मत लो, हाँ तो उसमें x का कोएफिशिएंट और c। x के कोफिशिएंट और c को लेना पड़ेगा आपको। हाँ ओके सर। और वो क्रॉस से हमें लिखना है नीचे, मल्टीप्लाई हाँ। करके। हाँ ओके हाँ। सर, कौन सा पहले लेना है? B1 C2? अच्छा ओके, हाँ ठीक है, समझ गया, थैंक यू सर। बोलो हेलो सर अगर उस पर C1 C2 0 लिया तो किसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो सारे x इक्वल टू y हो जाएंगे। ये इक्वेशन हो जाएगी ना, ओरिजिन से पास होगी। तो ये इसका जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू है। अच्छा ठीक है सर। डेरिवेशन करो, मजदूरी में से मत कराया करो। वंस और ये भाविन खुद करो।
मेथड बता दी ना मैंने, मेथड समझ में आई नहीं आई? तो करो फिर। वेरिएबल देख के डर लगता है? अरे ड्राइव कर लो ना बेटा, क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो सब डेरिवेशन से क्लियर हो जाएगा। अभी डेरिवेशन में जैसा आ रहा है तो वो आ रहा है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? डेरिवेशन में जैसा फॉर्मूला बन के आ रहा है तो वैसा फॉर्मूला आ रहा है। ड्राइव कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है? चलो, यू नीड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आई एम राइटिंग नाउ, ठीक है? आपको जौन सी मेथड अच्छी लगे उससे कर लो, मेरे को मेथड से कोई मतलब नहीं है। सॉल्व दिस। करो। करेक्ट है। यस। y कितना आ रहा है? अच्छा, आप मेरे को थोड़ा लॉजिकली बताओ, शुड आई सब्स्टिट्यूट हियर और शुड आई एलिमिनेट हियर? इसको सब्स्टिट्यूट करना इजी पड़ेगा कि एलिमिनेट? एलिमिनेट, है ना? हाँ, पहले y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, और यहाँ पे 4 से। रीराइट द इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा? 15x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 35। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट वुड बी 8x प्लस 20y 40। ऐड कर लो। When you add, what will happen? These will cancel out. This would be 23. And this would be what? 75. So x is 75 by 23. अभी नेक्स्ट किसको करोगे? फाइन, नेक्स्ट यू नाउ मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। रीराइट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6x माइनस 8y 14। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से करो, इट वुड बी 6x प्लस 15y 30। अभी क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं? तो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट इट वुड बी व्हाट? ये और ये कट जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट। ऐसा करना, ठीक है? तो ये प्लस रहेगा,
ये कितना हो जाएगा 23 and this 16. Easy? Comfortable with this? Next. एक और क्वेश्चन करो. जॉन सा चूज करना है कर लो बेटा. There is no slide. I am teaching live. नहीं रॉन्ग है. करेक्ट है बाबिन. नहीं रॉन्ग है ऐसे नहीं. आदित्य करेक्ट है. नहीं विदित रॉन्ग है. अभिक्षा करेक्ट है. अश्विन रॉन्ग है. नहीं अनुष्का रॉन्ग है. करते हैं अभी 3 वेरिएबल वाला भी, इसके बाद कर लेंगे. करेक्ट है. सत्विक रॉन्ग है. अश्विनी रॉन्ग है. नहीं सॉरी रॉन्ग है. अभिक्षा करेक्ट है.
नहीं, पूरा सॉल्व करो। करेक्ट है सात्विक, साइन मत भूलना, रॉन्ग है शौर्य। Correct answer is x is equals to -5/4 and y is equals to -1/4. सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो, जैसे करना है वैसे कर लो। एलिमिनेट करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बताओ। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 12 से। इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिवाइड बाय 12 भी 6 बन जाएगा, इस साइड 0 आ जाएगा व्हेन यू सबट्रैक्ट दीस टू। ठीक है, या आप अज्यूम से भी कर सकते हो। अज्यूम कर लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल U, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल V। इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखो, क्या आएगा? इट वुड बी 6/U, या 1 अज्यूम करो, ऐसा करो, रिवर्स अज्यूम करो, है ना, अज्यूम रिवर्स। हाँ, सब्स्टिट्यूशन आपको जिस मेथड से करना है उससे करो बेटा, नो प्रॉब्लम, you can do any way whatever you want. Answer should be like this. So you can assume 1/x plus y as capital U, ठीक है, 1/x minus y is capital V। इनको रीराइट करके लिख दो, इक्वेशन क्या हो जाएंगी? It would be 6U plus 7V plus 3। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? It would be U by 2, ठीक है, V by 3। You can substitute U here, इतना कितना आएगा? It is 2 by 3V। Substitute here, ठीक है, 6 into 2 by 3 V is equals to 7V plus 3, ये 4V, ठीक है, तो इट्स 4V 3V, तो 3V equals to -3, so V equals to -1, ये यहाँ पे आएगा, तो x minus y equals to -1, एक इक्वेशन ही आ गई। सिमिलरली यू कैन फाइंड u, अभी v को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 6u प्लस v की जगह क्या आएगा? 3/2, तो 7 into 3/2 u प्लस 3, ठीक है, ये कितना हो गया? 21। 10.5u plus 3 equals to 6u, -4.5u is equals to 3, तो u कितना आ जाएगा? -3, 30/45, 2, 3, -2/3, तो x प्लस y कितना हो जाएगा? -3/2। अभी इन दोनों को सॉल्व कर लो, when you add these y कैंसिल हो जाएगा, -5/4 आ जाएगा x, and when you subtract these y ये आ जाएगा। u and v are another variables, or you can do directly, whatever way you're comfortable।
ठीक है, कौन सा डायरेक्ट वे? व्हाट डायरेक्ट वे आर टॉकिंग अबाउट? सब्स्टिट्यूशन से कर लो, ये सब्स्टिट्यूशन से कर लो, इसकी वैल्यू यहां डाल दो। पुट द वैल्यू ऑफ दिस ओवर हियर, x माइनस वाई की वैल्यू आएगी। यही तो किया है। चलो गाइस, 3 वेरिएबल अभी, ठीक है। 2 वेरिएबल कंफर्टेबल, जिस मेथड से करना है उससे कर लो। अरे जैसे करना है वैसा करो, आई डोंट केयर, सॉल्यूशन आना चाहिए। क्या डाउट है? सर यू और बी क्या है? बोला तो बेटा वेरिएबल है, का खा गा ले लो। यू एंड बी में प्रॉब्लम है तो का मान लो, गा मान लो। अच्छा, और सर यहाँ पे जो हम एलिमिनेशन में मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, वो कोएफिशिएंट करते हैं ना, आपने 12 क्यों किया है? किसमें? सर ये सेकंड वाले में हम। ये 6 बनाना है, 6। ये 6 कब बनेगा? अच्छा सर, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे वो कट जाए? हाँ, सेम हो जाए, शकल सेम हो जाए उनकी, ताकि अच्छा, कट जाए। ऐसे कोएफिशिएंट, यहाँ का कोएफिशिएंट नहीं मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1/3 को इधर ऊपर वाले 6/x+5 से और 7 को नीचे वाले से। वैसे भी कर सकते हो, अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे नहीं आ रहा है इस वाले क्यों से। नहीं आएगा? यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 6 का करोगे, करो जरा। यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा? 3 आएगा। आएगा। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 3 आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? आ तो रहा है। अच्छा सर, 7 और 1/3 मल्टीप्लाई नहीं करना है? आपको कौन सा एलिमिनेट करना है? आपको x प्लस वाई एलिमिनेट करना है कि x माइनस वाई एलिमिनेट करना है? बेटा एट अ टाइम एक ही एलिमिनेट होगा ना, अच्छा इसलिए तो हाँ, 6 का अलॉटमेंट किया है। ओके ओके, थैंक यू सर। बोलो। श्रेयास भट्ट बोलो, बोलो। नहीं सर, गलती से हो गया था ऊपर, सॉरी। चलो। अब 3 वेरिएबल गाइस, 3 वेरिएबल में डर मत जाना। यू हैव टू थोड़ा तो और मजदूरी करनी पड़ेगी। जब मजदूरी करनी पड़ती है तो डरने लगते हो कि सर, खास कर ये भावेन, कि सर मजदूरी नहीं करनी। ये 2x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन ये है, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। तीसरा इक्वेशन ये है, 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करना है। x और y की ऐसी वैल्यू डालनी है जो तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें। तो आप चूज कर लो। पहले हम 2 नई लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना, जल्दी बताओ। विच वेरिएबल यू वांट टू एलिमिनेट, चूज कर लो पहले। यू कैन चूज एनी वन। x को, चलो तो x को शहीद करना है हमको, x की शहादत देनी है। वी हैव टू मेक x को शहीद करना है। जल्दी बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? ये 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, इसको किससे करूं? इसको 1 से ही, क्योंकि यहाँ 1 है, डजंट मैटर। तो अभी इक्वेशन क्या बन जाएंगी? 2x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 1। और दूसरी वाली 2x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। क्या करूं, जल्दी बताओ, जिससे कि x एलिमिनेट हो जाए, जिससे कि x शहीद हो जाए। जल्दी बताओ क्या करूं?
सब्ट्रैक्ट कर दूं? वेरी गुड। सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये हो गया शहीद। ये कितना हो गया? 5y। ये प्लस माइनस, तो माइनस 5z इज इक्वल्स टू 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, है ना। अभी ये सपोज करो ये इक्वेशन 3 था, ये 4 मान लो। चलो अब मेरे को x और एलिमिनेट करना है। बताओ किससे करूं? 1 और 3 से करूं या 2 या 3 से करूं? जल्दी बताओ किससे करूं? विच इक्वेशन शुड आई चूज नाउ? चलो 2 और 3 से कर देते हैं। तो 2 और 3 से करने के लिए पहले यू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3 और रीराइट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या आएगा? 3x माइनस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और इसको एज इट इज लिखो, इट इज 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5। अब क्या करूं? x को शहीद करना है। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा उल्टा कर देना तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2/5y। ये कितना हो जाएगा? 5z इक्वल्स टू 5। तो यहां लिख दो ये 5y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 5। कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशन? 4 और 5 को सॉल्व कर सकते हो क्या? तो बस हो गया आंसर, और क्या। दिस इज हाउ द इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आर सॉल्व्ड। यू कैन डू मेनी वेज, यू कैन सब्स्टिट्यूट, है ना। यहां से x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसमें देयर आर मेनी वेज, दिस इज नॉट द ओनली वे। बोलो। सर अगर हम लोग तीनों को एक साथ इसमें ले तो अभी देखो सर, 3x माइनस एक्स माइनस 2x, तो x उधर निकल जाएगा और उसके साथ y भी निकल जाता है, तो सिर्फ z बचता है। तीनों को क्या करना है? तो 3x माइनस एक्स माइनस 2x। ऐसा बोल रहा हूं ना, आपको ये करना है 3 माइनस 1 माइनस 2। हाँ और तो कर लो। मतलब सर जो आपने जो पहले स्टार्टिंग में इक्वेशन दिया था ना, उसमें ही वैसा हो रहा था, तो वैसा किया तो चलेगा? चलेगा चलेगा, सब चलेगा बेटा, सब चलेगा। बोलो। सर इसका मतलब ये मेथड ऐसा है कि 1 और 2 का इक्वेशन करना है, 2 और 3 और फिर 1 और 3 का इक्वेशन करना है, वैसा है सर? बेटा इक्वेशन तो तुम कुछ भी नाम दे दो, कंसेप्ट पकड़ो। कंसेप्ट है, पहले शहीद होने के लिए चूज करो कौन सा वेरिएबल शहीद करना है। सर आप मतलब लोगों ने 1 और बोला कि सर, आपने बोला कि सर एक्स शहीद करो, तो मैंने इनको 1 और 2 नाम देके एक्स को शहीद कर दिया। ठीक है, फिर मैंने 2 और 3 से एक्स को शहीद कर दिया। मैं 1 और 3 से भी कर सकता था, आंसर वुड बी सेम। ओके सर। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ो। थैंक यू। डन हो गया? एक और करना है? लो एक और कर लो। वन मोर क्वेश्चन फॉर 3। ये लो, सॉल्व दिस। चूज कर लेना आपको किसको एलिमिनेट करना है, और कॉन्फिडेंटली रहो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज योर सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइंग, योर मेथड इज करेक्ट। आपने किसको मल्टीप्लाई किया, किसको डिवाइड किया, आई डोंट केयर। चलो फाइंड एक्स वाई जेड।
1 2 इसकी वर्कशीट है बेटा, आज की क्वेश्चन की वर्कशीट है, 17 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं एंटर नहीं करने दूंगा ऑल 98 स्टूडेंट। लेट मी शेयर द लिंक, लिंक भी शेयर करने दो, रुको। ड्राइव की लिंक है सबके पास? Has everybody got the drive link? शेयर तो करिए ग्रुप में कल। अभी पेस्ट करता हूं, रुको। नहीं, रॉन्ग है सत्विक। मिल गई? ये ड्राइव लिंक भेज दी मैंने। I've sent the drive link now. सेव कर लो इसको, बुकमार्क करो इसको, बुकमार्क दिस। इसमें लीनियर इक्वेशन की वर्कशीट में आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है? यू हैव टू सॉल्व बिफोर एंड सबमिट इट। लेट मी राइट इट हियर। आई एम राइटिंग वर्कशीट होमवर्क, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, लीनियर इक्वेशंस सॉल्व एंड सबमिट इन द ड्राइव, डिटेल्ड सॉल्यूशन solve and submit in drive before next class। यदि किसी बच्चे ने नहीं किया तो उसको लेक्चर अटेंड नहीं करने दूंगा। दीप्तांशु करेक्ट है? हाँ, प्रियोरिटी अभी लीनियर इक्वेशन की है, पॉलिनोमियल वाली बाद में करते रहना, ठीक है? पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको बहुत टाइम दे रखा है। प्रियोरिटी इज लीनियर इक्वेशन नाउ बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव पढ़ा है आपने अभी। ये आ गया आंसर? लेट मी राइट द आंसर, क्रॉस चेक कर लो, नहीं आए तो पूछ लो। Answer is x is 17/2, y is 3, z is -4. This is the answer. अभी अपलोड नहीं करिए बेटा, अभी करूंगा मैं। उसी वर्कशीट में करूंगा, ठीक है? यू विल गेट द वर्कशीट।
भेज तो दी बेटा लिंक, आई हैव सेंड इट, ये रही, ये देखो, ये भेजी। हाँ, यू हैव टू सबमिट इन द ड्राइव। चलो बताओ अभी किसको एलिमिनेट करें, जल्दी बताओ। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। किसकी शहादत देनी है, जल्दी बताओ। whom you want to martyr, किसको मार्टिर करना है? एक्स को। हर बार बेचारा एक्स बोलेगा कि मेरे को शहीद करते रहते हो। चलो इसको करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? यहाँ 4 है, 2 से कर दूं, ये कितना आएगा? 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16, और इसको एज इट इज रखो, ठीक है। इट वुड बी 4x माइनस 5y प्लस z इज इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट कर दो अभी, माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस y, ठीक है, माइनस z इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी 2 और 3 से x को एलिमिनेट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रीराइट द इक्वेशन, क्या आएगा? लेट मी रीराइट इट। इक्वेशन वुड बी 4x माइनस 5y प्लस z इज इक्वल्स टू 15। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स 4x प्लस 8z इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। सो नाउ दिस विल कैंसिल आउट, it would be minus 5y minus plus, तो minus 7z equals to 13। this is equation number 5। अब 4 और 5 सॉल्व कर लोगे क्या? can you solve 4 and 5 now? z को एलिमिनेट कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई दिस विद 7, तो क्या आएगा? it would be minus 7y minus 7z इक्वल्स टू 7, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 2y एज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 3। ये आ गया। यू गॉट द y, सब्स्टिट्यूट एनीवेयर, यू गेट z, यू गॉट द z, सब्स्टिट्यूट एनीवेयर y and z, you get the x। कंफर्टेबल? चलो अभी नेक्स्ट। हाँ, पीडीएफ फॉर्म में,
PDF में कर लो, डॉक फॉर्म में कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। हाँ, वर्कशीट में नहीं आएगा तो यू कैन आस्क नहीं आया। सपोज करो आपको क्वेश्चन 2 नहीं आया ना, तो उसके सामने ऐसे लिख देना, सर नहीं आया। ऐसा लिख दो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, डिस्कस कर लेंगे। बट यू मस्ट राइट, ऐसे खाली मत छोड़ना। यू मस्ट राइट, आई मस्ट नो कि हाँ किसको क्या आ रहा है, किसको क्या नहीं आ रहा है। बिफोर द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास आपका सैटरडे को होगा। हाँ, करेक्ट ना, यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी वैल्यू, वेरी गुड। तो ये ऐसा क्वेश्चन बेटा है ना जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, यू आरंट गेटिंग एनी सॉल्यूशन, इनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, है ना। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच विल सेटिस्फाई दीज साइमल्टेनियसली, नो सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा कि सपोज करो आपने एक लाइन ली x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये एक ग्राफ है। सिमिलरली आपने एक दूसरी लाइन ली x माइनस वाई, ये जो दिस पॉइंट पे कट करते हैं वो सॉल्यूशन होता है। ये चीज समझ में आती है? कितने बच्चों को ये समझ में आया कि सर ये एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, लेट्स से ग्राफ नंबर 1, ये लाइन एक दूसरा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, लेट्स से ग्राफ नंबर 2। दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आंसर होता है। ग्राफ G1 एंड G2 का इंटरसेक्शन पॉइंट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। बट इस केस में आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। द आंसर इज नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होगा बताओ मेरे को, दो ग्राफ कब कट नहीं करेंगे? टेल मी व्हेन टू ग्राफ विल नॉट कट ईच अदर, जल्दी बताओ। पैरेलल, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ले लिया आपने, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, दूसरी स्ट्रेट लाइन भी ऐसी पैरेलल है, तो ये कहीं कट ही नहीं करेंगे बेटा।
है ना, when it is parallel, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, we will relearn this concept in the next class. ठीक है, when two linear equations are parallel, then there is no solution. It is only when they cut, करेक्ट ना, जब वो कट करते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं, like this, ऐसा, तो ये जो सॉल्यूशन होता है, दिस इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन. नहीं, both are not equal, the ratio is equal, है ना. We will see the condition of parallel also. आपको कंफ्यूजन हो गया कि सर मेरे को देख के कैसे पता चलेगा कि पैरेलल है कि नहीं, तो वी विल राइट द कंडीशन आल्सो कि क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू इक्वेशन टू बी, टू ग्राफ्स टू बी पैरेलल. वी विल सी दैट आल्सो ना. नहीं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना, डज नॉट मीन दैट बोथ आर इक्वल. हाँ, in the next class, not in this. In the next class, we will see the various conditions for the solvability of the linear equations, their graph, and modulus function. That's it. Then the chapter will be done. टेन 45 को है ना अभी तो. नहीं, मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो. लेट्स सी, डू वन मोर सम. टेन 45 की शेयर तो करी है मैंने ग्रुप पे. है तो जुआ मैम का. हाँ, priority is, see, priority is linear equation guys. ये priority है. इसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो फिर पॉलिनोमियल की कर देना, है ना. पॉलिनोमियल की एक ही सीट में, इन वन शीट यू विल फाइंड ऑल 5. तो priority is this. हाँ, ग्रुप नहीं बेटा, ड्राइव में डालूंगा मैं. ड्राइव लिंक सेव कर लो प्लीज, काइंडली सेव दी ड्राइव लिंक. बुक मार्क कर लो, आपके सारे असाइनमेंट इसमें आएंगे अभी. बुक मार्क कर लो इसको. हाँ, लीनियर इक्वेशन इज मस्ट. पॉलिनोमियल आप नेक्स्ट वीक भी कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, पर लीनियर इक्वेशन इज मस्ट. ओनली मैथ्स. नाम वाइज करना. काइंडली सबमिट योर असाइनमेंट विथ नेम एंड सेंटर वाइज so that I can recognize. I have already shared the link on WhatsApp. Suppose करो आपने सबमिट किया तो ऐसे सबमिट करना. हाँ, Vidit from Chembur. That's it, ऐसा. ठीक है, और Athar from Nerul, something like this. Name the worksheet like this. You have to name the worksheet like this.
You have to create the PDF, you can create the Word document, you can submit the picture, whatever. लीनियर इक्वेशन की मैं अभी अपलोड कर दूंगा आफ्टर दिस क्लास. ठीक है, चलो, तो एनफ फॉर टुडे. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच गाइस. चलो, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ.